गुजरात का चुनावी मूड, ये जानने के लिए हम वडोदरा से 32 किलोमीटर दूर डभोई जाने निकले। रास्ते में एक गांव का बोर्ड पढ़ा। गांव का नाम है बनैया। सोचा चलो अंदर जाके यहाँ लोगों से बात करते हैं। मगर रास्ते में जिस तरह ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें नज़र आया तो लगा कि यहीं खड़े रह के यहाँ की खूबसूरती भी आपको दिखा देते हैं। बनैया गांव के लोगों से बात करने चलते हैं कि उनका क्या है गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए मूड, यानी कि गुजरात का चुनावी मूड जानते हैं। સરકારથી શું લાભ મળ્યા તમને? કશું અમને લાભ નહીં મળતો. આ ખાડામાં પડી ગયો છે. હે? આવું ઓયડું જોર મારું. આ તમારું ઘર છે? હા, કેટલા વર્ષોથી આવા ઘરમાં રહો તમે? હતા ઇન્દિરા વખતનું છે. એવું? તો ઇન્દિરા ગાંધી વખતથી આ જ ઘરમાં છો? આ જ એ ઘરમાં. સમયથી? એ તો પછી કોઈ સરકાર તમારા માટે કામની નહીં, કોંગ્રેસ નહીં ને ભાજપ નહીં? કશું કામ જ નહીં કરતા તઈ હું. ભાજપ સરકાર આવાસ યોજના માટે ઘર બનાવવા માટે પૈસા આપ્યા તો તમને મળ્યા? ના ભાઈ, નહીં મળ્યા બેન. નહીં મળ્યા? નહીં મળ્યા. ના, શું કામ કરો છો તમે? આમાં તો આ ખેતીનું કામ કરીએ. બને તો જાઉં ને કે ઘેર બેસી રહું. મજૂરીએ જાઓ? હા, શું મજૂરી કરો? 100 રૂપિયા આપે છે. એવું? ખેતરમાં કામ કરવાનું? ખેતરમાં જ નતા. એવું? 100 रुपया आखा दिवसना? ના, એક દિવસના. एक दिवसना? हाँ, एक बपोर बपोर सुधीना 100 रुपया आपे। 100 रुपया। इनका घर दिखाती हूँ मैं आपको। जो वो बोल रहे हैं ना बार बार कि गड्ढे में हम रहते हैं कई सालों से, तो वाकई ये गड्ढा है। देखिए ये दादी माँ जा रही है अंदर, उनको भी झुक के जाना पड़ रहा है। जो खाड़ो हमारा खाड़ो नहीं पूरा। बस ऐसा बना है गुजरात, कितना झुक के जाएंगे हम अंदर। इसीलिए इसे गड्ढा कहा उन्होंने कि ये घर नहीं, ये गड्ढा है। हम गड्ढे में बरसों से रहते हैं। भरत भाई दिखा दीजिए वहां तक, क्योंकि मैंने चप्पल पहने हैं, अंदर जाऊंगी नहीं। बा कह रही है कि कसो वांधो नहीं। सरकार वारी बांधी आले। हाँ। हाँ, ये ज कहिए न बीजू। हाँ। सरकार नવું ઘર બનાવી આપે તમને? हाँ। એવું? हाँ। તો અહીંયા જે તમે આટલા વર્ષોથી રહો છો તો ખેત મજૂરી કરીને જ ઘર ચાલે? આ મજૂરી કરી એકલા જાય, હું તો બીમાર નહીં જતી. અને પેલો સરકારે કહ્યું કે ગેસનો સિલિન્ડર આપ્યો છે, તો આપ્યો તમને? હોવે આપ્યો મળ્યો? આપ્યો હોવે. બાટલા પાણી ઉતરીને ગામમાં જઈએ અમે. घर बहुत बेन। અમારે ઘર વગર હોય તો પડી દેવાય. તો પછી વરસાદમાં કેટલો વખત તમે બહાર રહો? આ ઘરમાં તો આવી જ ના શકો ને? ના. કેટલો સમય ત્યાં રહો છો? ખાસો 2-3 દાડા રહીએ, પાણી ઉતરી જાય ને ત્યાર પછી નાહીએ, પાણી ઉલેચીને કાઢી નાખીએ બાઈને. દર વર્ષે એવું થાય? આ રેલ આવે ને ત્યારે એવું તારે એવું થાય. સરકાર તમારા માટે કોઈ બંદોબસ્ત કરે કે કોઈના ઘરે તમે રહેવા જાઓ? ગામમાં જતા રહીએ વળી. કોના ઘરે જાઓ? એટલે જઈએ, આવે હારી હોય તે બોલાવે, અહીં નહીં આવો એવું કે. अच्छा, તમારા ઓળખીતાના ઘરે તમે જાઓ? हाँ। એવું છે। हाँ। पिछड़े गांव हैं, काफी दूर है शहरों से, वहां तक नहीं पहुंचे हो सरकारी योजनाएं, मगर ये वडोदरा शहर से बहुत नज़दीक, यानी डभोई विधानसभा इलाके में हम हैं। और ये जो गांव हैं वो वडोदरा शहर से 32 किलोमीटर से भी नज़दीक है, क्योंकि वडोदरा से डभोई 32 किलोमीटर होता है। उससे पहले ये गांव आ जाता है। अभी डभोई हम पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले ही इस गांव में हम जब आए तब ये तस्वीरें नज़र आ रही है कि यहाँ सरकारी सुविधाएं कितनी पहुंची है और कितनी नहीं, उसका जायजा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शनનો માહોલ શું છે? ઇલેક્શનનો માહોલ શું હોય વળી? આ પંજા શું ઈચ્છો છો સરકારથી? અત્યારે જે સરકારે યોજનાઓ જે આપી છે એનો કેટલો લાભ મળ્યો છે તમને? કશું લાભ મળ્યો નહીં. શેનો અભાવ છે આ ગામમાં? પંજાનો જ અભાવ ને. અહીંયા સ્કૂલ કેવી છે, હોસ્પિટલ છે, કેવી પરિસ્થિતિ છે? હોસ્પિટલ કશું નહીં, અમારે થુવાઈ જવું પડે છે. ક્યાં જવું પડે? થુવાઈ થુવાવી જવું પડે. ગરીબોની તો કોંગ્રેસ જ હોય કે માદારાની હોય ભાજપ.
તો બધા તો એવું જ કહેવા માંગે ને તો આ મોંઘવારી પણ ગરીબોને કેટલું તકલીફ પડે છે. તેલ કેટલું મોંઘું, મજૂરી કરીને ખાવાનું, એક વેરાના 100 રૂપિયા, પછી મજૂરી તો કેટલી હોય અને તેલના ભાવ કેટલા છે અત્યારે? 120 રૂપિયા છે, હમણાં ઉતર્યો છે અને વચ્ચે તો ખાસો ભાવ હતો. પણ સરકારથી કોઈ લાભ જ નહીં. આ પેલું જનધન ખાતું કે તેને પૈસા મળે તે અમને નહીં મળતા. તો તમે શિકાયત કરી કોઈ દિવસ કોઈને? આવે પણ કોઈ આવતું જ નહીં તો આની શિકાયત કરવાની. બદલાવ આવશે આ વખતે? તો આવશે જ ને બદલાવ. કેવો બદલાવ આવશે? લાવશે વળી કોંગ્રેસ. કેજરીવાલનું એમ બધી સુવિધા હાલમાં છે, લાઇટ બિલ છે, સ્કૂલોનું બધું સુવિધા હાલવાની કે છે. હવે ચૂલા પર કેમ બનાવો જમવાનું? અને ગેસનો સિલિન્ડર સસ્તો છે કે મોંઘો છે? મોંઘો છે એવો? તારે સરકારને ક્યાં 100 રૂપિયાનો બાટલો આલે ને કેટલા પૈસા લે. સરકારને શું કેવું છે? ઘર જોવો છે વળી. ઘર જોવો છે, 3 છોકરા છે, કઈ રહે? આ કઈ કોઈ એવું હાલતું નહીં, અમે કઈ રહીએ? તો સરકારની પેલી આવાસ યોજનાનો લાભ નથી મળ્યો તમને? 70 માં ચાલ્યા હતા. 70,000 માં એ તો ઓછું? સંડાસ બાથરૂમ હોય અમે ઘેર બાંધ્યું, જાતે? જાતે બાંધ્યું અમે. 1 લાખ રૂપિયા જ જયા. તે પૈસા અડધા ખવાઈ ગયા. 82,000 રૂપિયા મંજૂર થઈ હતી, તેમાંથી 12,000 રૂપિયા તો મળે ના. અચ્છા, એ પેલો કોન્ટ્રાક્ટર ખાઈ ગયો? તો એ જ ખાઈ જાય ને, કોન્ટ્રાક્ટ ખાઈ જાય ના મળ્યા. પછી આ તો છોકરા મજૂરી કરી કઈ ના પછી બાંધ્યું. સરકારને શું કેવું છે? સરકારને વળી શું કરે, મોંઘવારી ઓછી કરે વળી, બીજું તો શું કરે? મોંઘવારી ઓછી કરે વળી, બીજું તો શું? મોંઘવારી ઓછી કરે. કોંગ્રેસ આવશે વળી. बनैया गांव से निकलते निकलते हमें शाम हो गई और फिर हम सुबह निकले फिर डभोई के लिए। डभोई हीरा भागोड़ और भागोड़ के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 4 भागोड़ है, वडोदरी भागोड़, उसके बाद में हीरा भागोड़ जिसके बारे में ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं। तीसरी जो भागोड़ है वो है नांदोदी भागोड़ और चौथी भागोड़ है वो महुड़ी भागोड़। और यहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर रही है। कभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर आती है तो कभी कांग्रेस जीत कर आती है। ये हमेशा ही चलता रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इसी तरह से यहाँ पर लोग अपनी अपने कैंडिडेट को और पार्टी को सराहते हैं और चुनकर लेकर आते हैं। इस बार चुनावी मूड किस तरह लोगों का है और लोग क्या सोचते हैं सत्ता में है जो पार्टी उसके बारे में, और दूसरी 2 पार्टियां जो इस बार, क्योंकि गुजरात में 3 पार्टियों के बीच इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये जानेंगे। डभोई में कैसा चुनाव का माहौल है? दोनों पार्टी से समानता चलती है रही है, बस कांग्रेस और भाजपा। हम डभोई में रहते हैं, हमको ऐसा लगता है अच्छा, कि दोनों पल्ला बराबर है, बराबरी है। हाँ, मगर इस बार तो वो तीसरी पार्टी आई है और तीसरी पार्टी से भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं। नहीं उसका नहीं, नहीं, दोनों पार्टी में होगी ऐसा कैसे? ये पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है गुजरात पर। कितने खुश है उनके काम से? भाजपा से बहुत सब लोग खुश है। अच्छा, मैं भी खुश हूँ। क्यों खुश है? कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं काम उनकी? दिखाई पड़ता है, सब दिखाता है सब। हाँ, लोग तो ऐसा कहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है। मोघवारी तो रहती है भाई, अच्छा, ज़्यादा मेहनत करो तो मोघवारी आपको थोड़ी कम लगेगी। ऐसा नहीं तो ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत तो करनी पड़े ना सबको, उम्र प्रमाणे अपनी मेहनत करनी चाहिए। मगर लोग ऐसा कहते हैं कि मेहनत करते हैं मगर उतनी सैलरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है युवाओं को, उसके बारे में कुछ बताएंगे? और सबको तो भाजपा कैसे लगावे, धीरे धीरे काम होवे। काम तो करता है ना भाजपा, काम तो करता है, तो सब धीरे धीरे अच्छा हो जाए।
धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अब धीरे धीरे कितने साल में अच्छा होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके 25 साल तो दे दिए। वडोदरी भागोड़ से सटे डभोई का जो बाजार है, वहाँ हम लोगों से बात करेंगे। गुजरात का चुनावी मूड, यहाँ लोगों के मूड जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा बाजार है जो टावर तक पहुँचता है और बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग दुकानें हैं यहाँ पर। केवो छे इलेक्शनનો માહોલ? કમ્પ્લીટ જોરદાર. જોરદારમાં શું જોરદાર? એટલે લોકો કેન્ડિડેટ તમને મળવા આવે, આ શું છે? બધું કમ્પ્લીટ છે. હવે તો કોઈનું કશું કહેવાય ના. બંદેવના પલ્લા ભારે છે. ભાજપ કોંગ્રેસ બંદેવ. શું લાગે છે આ વખતે કંઈક બદલાશે કે પછી 25 વર્ષથી જે રાજ કરી રહી છે પાર્ટી એ જ આવશે? 8 તારીખે જ ખબર પડે. હવે કશું જ ખબર ના પડે. અત્યારે જે મોંઘવારીની વાતો થઈ રહી છે એના વિશે? મોંઘવારી તો હોય જ ને. હવે મોંઘવારી તો કઈ મોંઘવારી વધારે જ મોંઘવારી લાગવાની છે ને. જે આવે તે આપણે તો આપણું રીતે કામ કરવાનું. જે ભાવમાં ઘટાડો થાય તે આપણો ફાયદો થાય. इस बार 3 पार्टियां गुजरात में चुनाव लड़ रही हैं। किसका पलड़ा भारी रहेगा? बदलाव आएगा कि वही होगा? ऑब्वियसली बीजेपी। क्या अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा काम हुआ है? मोदी जी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। वो जो भी करते हैं वो अच्छा ही काम करते हैं। किस तरह के अच्छे काम हुए? क्या योजनाएं जो आपको लाभ मिला है? कौन सी योजना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी? ये आयुष्मान कार्ड जो है उससे पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बराबर। जो 370 का कलम था इतने सालों से, जो कोई नहीं कर पा रहा था, सब बोलते थे कि ये होता तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बना तभी लोगों ने उसका जो मुकदमा आया तभी बोला कि धमाल होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक किया तब बोल रहे थे कि धमाल होगा, वो होगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो भी किया पूरे प्री प्लानिंग। विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। इसमें मैडम वो मैं आयुष्मान कार्ड का बोला आपको, बराबर वो विकास की बात है। 5 लाख का बीमा फ्री में मिलता है। नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा। भाजपा सरकार ही आएगी। भाजपा में शैलेश भाई मेहता ने बहुत अच्छे से काम किया है 5 वर्ष में, वो भाजपा सरकार ही आएगी। किस तरह का काम किया उन्होंने? वही में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत वो विकास के काम हुए हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ही में जब भी जरूरत पड़ती है शैलेश भाई आके खड़े रहते हैं, प्रजा के बीच में खड़े रहते हैं। और ड्रेनेज का कुछ ऐसा वैसा तकलीफ है कुछ सोसाइटियों में, वो भी सॉर्ट आउट का काम चल रहा है। કોઈ પાકવાળા નેતા આયા નથી, કોઈને કોઈ પાકને જરૂર નથી. પાણી આવે છે તો બહુ જ પાણી ઢોળે છે લોકો, પણ સરકાર કોઈ કશું કરતું નથી. તમે એ તો કરાવો. બધા પાણી ઢોળી ઢોળીને ગમે તેમ અહીંયા ગાડી સવારમાં ચલાતું બી નથી. લોકો પાણી ઢોળે છે એવું? લોકો પાણી મને એવી ખબર પડી કે અહીંયા ગંદા પાણીની સમસ્યા છે, એવું કશું છે? બહુ જ છે પાણી. આ અંદર ગલીમાં જાઓ તમને બધા જ જવાબો આપશે. ગટરો નકરી ઉભરાઈ છે. આજની જે ગવર્મેન્ટ છે તે ગવર્મેન્ટ મધ્યમ વર્ગને એટલો બધો પીલાય છે કે વાત નહીં કરવાની. મોંઘવાડી આસમાને છે. મધ્યમ વર્ગના જે માણસો છે, જે કરોડપતિ છે, બીસી છે, એ લોકોને તો ગવર્મેન્ટ લાભ આલે છે. આજની તારીખમાં બી રેશન કાર્ડોમાંથી બી લાભ નથી મળતા સારા ઉજળિયાત માણસોને. અને બીજા નંબરમાં આ મોંઘવાડી જો ઘટે, મોંઘવાડી तो मध्यम वर्ग जीवी सके, लारी लईने निकलवानो नहीं। पिछले कई दिनों से जहाँ भी मैं जाती हूँ, किसी भी गांव जाती हूँ या हम शहर में लोगों से मिलते हैं, महंगाई की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। कैसा? अच्छा यानी कैसा? बीजेपी आएगी यहाँ पे। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, लोग तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ 8 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम तो वो उसके क्या काला चश्मा पहने हुए, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। चश्मे निकाल के देखे तो पता चलेगा काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। क्या क्या काम हुआ बताइए? सब यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले गए। कुंडेला गांव में यूनिवर्सिटी डाली गई, यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हो रहा है उद्घाटन, सब काम हुए। यहाँ पे हमारा कॉरपोरेटर काम नहीं कर रहे। 3 कांग्रेस के कॉरपोरेटर है, कुछ काम ही नहीं कर रहे। देखो आप, कुछ काम नहीं।
जीत के घर पे चले जाते हैं, आते ही नहीं है। જે એના નસીબમાં હશે તે આવશે. नहीं नसीब नहीं है तो पब्लिक करे ने, नसीब थोड़ी करे. पब्लिक वोट आपे ए करे. પણ પબ્લિકનું કામ કાં થાય છે? કયા કયા કામ છે એવા જે નથી થયા? અમારી ઈચ્છા વાડી બનાવવાની હતી તો અમે માગણી કરેલી, તે ના થયું. આજે 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, એ પડી ગયું જો વાડીનું બધું મકાન. કોની પાસે માંગણી કરેલી? જે ચૂંટાઈને આવ્યા તેમની જોડે. શું લાગે છે આ વખતે બદલાવ કે પછી? એ તો હવે ચેન્જ થાય તેમ જ મજા છે. ગુજરાતમાં 3 પાર્ટી છે. હા એ તો કઈ પાર્ટી આવશે? હવે આમ તો ભાજપ ને કોંગ્રેસ છે વધારામાં, પછી આપમાં તો બહુ મને નથી લાગતો, પણ આપની સીટો થોડી ઘણી આવશે ખરી, કારણ કે એનું કામ બોલે છે. 10 साल की एक समस्या है जिसके बारे में उनको बताना है और हमें वहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ आओ और हमारे साथ चल के देखो कि क्या परेशानी है. ये तो कॉरपोरेटर का काम है, ये तो कॉरपोरेटर करेगा ना. कॉर्पोरेटर तो ऊपर थी तो ऑर्डर आवे જ છે ને. अच्छा हाँ तो वो क्यों, क्या कारण क्या देता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ઢક્કણ નથી યોગ્ય છે. ऐसा? હા નગરપાલિકામાં ઢક્કણ નથી ગોલ. તો આ 10 વર્ષથી આ 10 વર્ષથી આ જ પોઝિશનમાં છે. ઉંદર નીકળે છે અંદરથી. એ તો અમારું ઘર બનાવ્યું નહોતું બનાવ્યું તો ઘરમાં ઉંદર આવતા હતા. પાણી બી આજે કેટલા 3 મહિનાથી ડોરું પાણી આવે છે. कोई जवाबदारी लेवा तैयार नहीं. ચોમાસું तो वरसाद पड़े છે, અત્યારે કે वरसाद पड़े છે. चुनाव विधायक के हैं मगर समस्याएं नगर सेवक की आ जाती है हमारे सामने. यानी कि आप सोचिए कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, नल, गटर, पानी, रास्ते, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ही सही तरीके से मुहैया नहीं होती है तो आम इंसान क्या करेगा? कोई भी इलेक्शन हो परेशानी तो वही लेके आएगा. कैसा माहौल है यहाँ इलेक्शन का और किस तरह का यहाँ कैंपेनिंग हो रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है इधर जी. और पुराने समय से ही भाजपा का गढ़ रहा है इधर जी. अभी इसी बार वो भाजपा का भी कांग्रेस में है. हाँ. तो दोनों पार्टियों का समतल बनता है. हाँ. फिर आगे कौन आएगा वो मालूम नहीं पड़ता है. तीसरी पार्टी भी आई है इस बार गुजरात में, उसके बारे में कुछ बताएं. उसका तो चना नहीं आएगा क्योंकि वो एक नंबर का झूठा आदमी है केजरीवाल. और दूसरी क्या बात है, वो गुजरात के बारे में बहुत पुराने समय में बहुत गलत बोल गया है. तो उसको तो कोई प्रेफरेंस नहीं देगा इधर. हाँ. तो मौजूदा सरकार से आप कितने सेटिस्फाइड हैं उनके कामगिरी से? अभी मौजूदा सरकार में जो हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तो सारे वो स्टेशनरी के लिए घूमते रहते हैं ना जी. तो वहाँ के रोड रास्ते बहुत बढ़िया हो गए हैं. और जो इधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया है. એટલે विकास के बारे में तो पूछना ही मत है. जब तक मोदी रहेगा तब तो विकास तो रहेगा ही. अच्छा. और महंगाई के बारे में क्या कहोगे? महंगाई तो क्या है, वो कल आपकी उम्र कितनी थी? 26 साल 27 साल बराबर. आज 26 साल एक दिन हो गया ना, तो महंगाई तो ऐसे बढ़ते ही रहेगी. हम जब 40 साल पहले नोटबुक बेच रहे थे 3 रुपये 4 रुपये में बेच रहे थे, 200 पेज की आती थी. मगर जब वो कांग्रेस की सरकार में वो विपक्ष में थे तब ऐसा कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुत सस्ता करेंगे, पेट्रोल के दाम तो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे. मनमोहन सिंह पे बहुत ज़्यादा वार करते थे वो हमेशा पेट्रोल के मामले को लेकर, जीडीपी के मामले को लेकर. तो वो बात आज क्यों नज़र नहीं आ रही है? सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? जीडीपी अभी कहाँ पहुँचा है हमारे देश में? ये बात सही है, लेकिन क्या है, समय के अनुसार बढ़ता ही रहता है. अच्छा. अभी कांग्रेस आएगी नहीं तो मेरा दावा है, लिख लो, 200 रुपये से कम में पेट्रोल नहीं दे सकेगी. नहीं, हमें कांग्रेस लाना या बीजेपी को हटाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ. मेरा कहना ये है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे जो फैक्ट है तो वही बोल रहा हूँ. महंगाई तो है, सबके गजे में तकलीफ तो रहती है, लेकिन कोई भी पार्टी आएगी तो महंगाई तो कम नहीं होगी. हाँ, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी क्या है, जो अभी युद्ध की परिस्थिति है, अभी विश्व लेवल का सब बातें हो गई है. और विश्व लेवल में क्या है कि अभी जो सब देशों में से बढ़िया अभी जो इकोनॉमी है वो अपने इंडिया की है. सही बात है. हाँ, और इसीलिए वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से जो काम कर रहा है मोदी साहब, वो बढ़िया काम कर रहे हैं. 3 पार्टियां लग रही है लेकिन वो बीजेपी वो सर्वोपरि है. बीजेपी पे सामने कोई नहीं टिकेगा. अच्छा. बीजेपी का माहौल ही ऐसा है और बीजेपी का काम ऐसा बोलता है कि बीजेपी के आगे कोई नहीं आ सकता और जंगी बहुमती से बीजेपी ही आएगी. ऐसा
हाँ ऐसा ही है, क्योंकि काम बोलता है बीजेपी का। महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों का परेशानी सामने आ रही है। जहाँ जहाँ भी मैं गई तो महंगाई के बारे में ही लोग बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो उसको लेकर बीजेपी को नुकसान होगा इस बार? नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, महंगाई है ही नहीं। अच्छा। कोई भी जगह पे महंगाई नहीं है, तो लोग ऐसा बोलते हैं। सभी जगह पर देखो नई नई कार लोग रोज खरीदते हैं, दिवाली पे देखो, कोई भी त्यौहार पे देखो नई नई गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं। महंगाई है ही नहीं। मोदी जी ने इतना सस्ता कर दिया सभी जगह कि कोई महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो सभी सरकार में रहेगी, सस्ती महंगाई तो रहेगी, वो तो चलता ही है। जी। इस बार कुछ बदलाव होगा कि फिर गॉड नोस। अरे भगवान को क्यों बीच में डाले हम? हाँ, राजनीति वाले की बात करें। हम लोग सिर्फ धंधा करते हैं। अच्छा। इसके सिवा और कुछ हमको मालूमात नहीं। ऐसा? या मगर ये 25 साल से जो गुजरात में सत्ता पे जो लोग हैं, किस तरह का काम हुआ है, कितने सेटिस्फाइड हैं आप? देखो ना, आप तुम भी तो जानते हो कि क्या यहाँ लोगों को हमें तो लोगों से परेशानियाँ कितनी है, लोग जानते तो हैं। कितनी क्या परेशानी है? सब जात की परेशानी है, भाव वधारे की और दूसरी भी बहुत सारी तकलीफें हैं। अच्छा। हाँ, मगर उनके हिसाब से तो ऐसा है कि नहीं, महंगाई नहीं है। वो तो प्रॉब्लम हर एक को कुछ ना कुछ तो होता है ना। हाँ, किस तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है? बिजनेस को लेकर क्या क्या ठीक परेशानी? ठाक चलता है अभी समझो ना, ठीक ठाक चल रहा है। पर फिर लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, यहाँ पर मॉल बोल आने वाला है, इसलिए लोग उनको धंधे की छोटी दुकानों के लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ मॉल बनने वाला है। हाँ। ओके। हाँ, तो ये तो विकास की बात है ना। विकास तो देखो चलता है ना, विकास कभी तो यूँ बोलते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन नहीं भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, खाली ऑन पेपर दिखता है कि विकास है। डभोई में किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि इस बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो है ही शैलेश मेहता, मगर सामने जो कांग्रेस में है वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस में गए हैं। मेरी बात सुनो, अभी 3-4 रोज से पेपर में आप पढ़ रहे हैं ना, लोग किससे सेटिस्फाइड है या नहीं है वो आपको पता चला होगा। नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसलिए वडोदरा से यहाँ तक आई हूँ। मेरी बात सुनो, देहात में जाओ, वहाँ लोग इनको भाजपा वालों को ये कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, लोग नहीं कर रहे। हाँ। अच्छा, आप तो कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं। अच्छा। ये अच्छा है, गांव के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मगर यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। कैसा है चुनाव का माहौल? क्योंकि इस बार 3 पार्टियां मैदान में हैं। तीनों जोर में है। ऐसा? हाँ। तीनों जोर में कैसे हैं? तीनों जोर में है। ऐसा? वो भाजपा ने कुछ किया नहीं। हाँ। वो भाजपा में से कांग्रेस में आया हुआ है। हाँ। इसलिए तीनों ही जोर में है। तो तीसरी पार्टी कैसे जोर? पार्टी उसका अच्छा काम है। हाँ? पहले का जो 5 साल पहले जो जहाँ पे वो था वहाँ पे अच्छा काम है जिला पंचायत में। अच्छा, अजीत ठाकुर की बात कर रहे हैं आप? जिला पंचायत में उनका अच्छा काम था, इसलिए उनका पलड़ा भी भारी है। हाँ, मगर वो पार्टी उन्होंने जो चुनी है उसका क्या? पार्टी ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैसे आम आदमी पार्टी क्यों पसंद आई आपको? आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम किया है, यहाँ पे भी अच्छा उम्मीद रखते हैं कि अच्छा काम करेगी। जी, क्योंकि वो फ्री देने की बात कर रहे हैं। फ्री देने की तो बात सब कोई करता है। हाँ। मोदी ने तो कोरोना में फ्री में अनाज दिया। हाँ। ये भी ये बिजली दे रही है। 1000 रुपये हर 18 साल के बड़ी लड़की को दे रहे हैं। अच्छा, 25 साल से जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है तो कौन से काम से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं? खाली उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बाकी डेवलपमेंट में जो है पैसा है वो किया है, अपना ही पैसा है, दूसरे का थोड़ी पैसा है, उनका थोड़ी पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। डेवलपमेंट किया है उसने। तो डेवलपमेंट तो अच्छी बात है ना। डेवलपमेंट किया है, सामने रोजगार नहीं है ना। रोजगार भी तो दे ही रहे हैं। नहीं मिलता, वो तो बोलते हैं। ऐसा? हाँ। कौन बोलता है? सब बोलते हैं। कौन? भाजपा वाले भी बोलते हैं हमने रोजगार दिया है, कहाँ है रोजगार। तो अब फिर क्या करेंगे? बदलाव लाएंगे? बदलाव आएगा। कौन आएगा? कोई भी आएगा, कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए। ऐसा? बट बीजेपी से छुटकारा? बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन हो तब ना, अब अकेला हमारे चाहने से क्या होता है। डेवलपमेंट हुआ है मगर रोजगारी के मामले में अभी भी लोग
असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं। कैसा है चुनावी माहौल? अच्छा है। मस्त है। अब मस्त में क्या मस्त है? मस्त मतलब दुनिया में खाना पीना पीना सब कंप्लीट है। ऐसा चुनाव में खाना पीना मिलता है वो अच्छा है, और चुनाव के बाद क्या? मेहरबानी ऊपर वाले की मेहरबानी है, खा पी के ले करते हैं, कमाने जाते ये हैं। हिंदुस्तान ऊपर वाले की मेहरबानी से चलता है कि ये राजनेताओं से चलता है? ऊपर वाले की मेहरबानी से। ऐसा नेता कुछ नहीं करते? नेता कुछ नहीं सरकार कुछ नहीं करती। नेता तो अपना अपना पेट भर लेते हैं। नेता अपना 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 ऊपर वाले का पैसे दुनिया चलती है, ऊपर वाले से सब मांगते हैं, नेताओं से नहीं मांगते हैं। नेता क्या नमाज पढ़ कर दुआ करने की, बस खाना पीना दूसरा क्या। नेता क्या करते हैं? नेता तो बस राज चलाते हैं। कैसा राज चलाता है? घर महंगाई बताते, घर को महंगाई तो करते नहीं, दिन पे दिन महंगाई, तेल का भाव बढ़ जाता है, गेहूँ का भाव बढ़ जाता है, चावल का भाव बढ़ा देते हैं। क्या राज चला कर राज्य में क्या कराए? भाजपा आवे क्या कांग्रेस आवे, हमारे तो मजदूरी करके खाने का है। बोलो फिर क्या करोगे इस बार? बदलाव लाओगे? बदलाव है जो भी पार्टी आएगी वो तो कहीं कुछ करने वाली नहीं है, महंगाई तो बढ़ती जाएगी। कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है, मगर ये तीसरी पार्टी आई है उससे उम्मीद है ना? आप लोग को नहीं खबर, आप तो अपने पंजे को दे के ऐसा? अपना कांग्रेस है, इंदिरा गांधी ने अच्छा करा काम। इंदिरा गांधी जैसा कोई खुशी होवे नहीं, औरत ने राज चला, वो कोई आदमी ने राज नहीं चला सकता। કાકા કેટલી ઉંમર તમારી? 80 વર્ષની. 80 વર્ષ. તો કેટલા ઇલેક્શન જોયા? વિધાયકના કેટલા ઇલેક્શન જોયા? લગભગ 20 તો જોયા હોય ને. 20 જોયા, બરાબર છે. તો આ 20 ઇલેક્શનમાં શું બદલાવ આવ્યો હજુ સુધીમાં? બદલાવ તો આવ્યો બે કેવો છે. બદલાવ આવ્યો? કાં બદલાવ આવ્યો. કેવા પ્રકારનો બદલાવ? વિકાસ જેવો. વિકાસ કેવો વિકાસ થયો? પહેલાં હું હતું ને અત્યારે કેવી એ જે બધું દેખાય છે આપણને નજર આગળ. પહેલા એટલે કેટલા વર્ષ પહેલા? છેલ્લા 30 વર્ષ પછી. પહેલાં તો હતું જ નહીં કંઈ એવું. એટલે અત્યારે વિકાસ થયો છે. અને આ મોંઘવારી વિશે બધા વાતો કરે છે, એના માટે શું કહેશો? મોંઘવારી તો છે જ બેન, હવે મોંઘવારી તો છે જ. અને ધંધા રોજગાર બિલકુલ થોડા એ થઈ ગયા, વેપાર ધંધા બધું. તો પછી કેવી રીતે વિકાસ થયો? વિકાસ ખાલી રોડ રસ્તા ને બ્રિજ બન્યા એ વિકાસ છે? બ્રિજ હા, તો એ વિકાસ છે? એ તો જે સમજો તે હવે. ના, એવું નહીં. તમે બે તરફ બોલી રહ્યા છો. પહેલાંના એમાં આટલી બધી સુવિધાઓ નથી, અત્યારે આપણને દેખાઈ રહી છે સુવિધાઓ થોડી, બરાબર એ. પણ એની સામે બીજી વસ્તુઓ જે નથી એનું નથી, એનો એ કરવાનો આપણે હવે. હા, તો એ એટલા માટે જ પૂછું છું કે આ વખતે શું થશે? કોઈ બદલાવ આવશે ગુજરાતમાં? બદલાવ તો નહીં પડે, લગભગ એ જ રહેશે. ખેંચી થોડી રહે પણ એ જ રહેવાનું છે. એવું છે? અચ્છા, ડભોઈ વિશે વાત કરીએ આપણે. ડભોઈમાં અત્યારે જે બે કેન્ડિડેટ છે બંને ભાજપના છે, ભલે સામે કોંગ્રેસમાં ગયા પણ છે બંને ભાજપના, તો શું થશે? એ કંઈ નક્કી ના કહી શકાય બેન. તમને શું લાગે છે? કારણ કે ત્રિપાખ્ય જંગ છે ને, એટલે બહુ ખ્યાલ ના આવે. અચ્છા, ત્રિપાંખીયો જંગ બોલ્યા તમે, તો આ ત્રીજી પાર્ટી વિશે કહો. એ તો આમ પાર્ટી તો પહેલી વાર આવેલી છે એટલે બહુ એ ના કહેવાય ને. આપણી બોલી તો પહેલી વાર કહી હું માનો ને, એટલે બહુ એ ના કહેવાય. કોણ કોણ આવ્યું ચુનાવ પ્રચાર માટે? મને તો નામ હોય નહીં યાદ બધા. કઈ પાર્ટી આવી? આમ આદમી પાર્ટી. એવું? હા. બીજું કોઈ નહીં આવ્યું હજુ સુધી? આવે છે ને, બીજા હોય આવે છે. કઈ કઈ પાર્ટી છે આ વખત ખબર છે? આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી, ભાજપ, કોંગ્રેસ. એવું છે? હા. તો ત્રણ પાર્ટી લડી રહી છે ચુનાવો વિધાનસભાના. શું લાગે છે તમને આ વખત કશું થશે? બદલાવ થશે કે શું થશે? એ તો કંઈ કહેવાય ના, રિઝલ્ટ આવે એ પ્રમાણે થાય. કહેવાય ના, પણ તમે શું વિચારો છો? શું લાગે છે તમને અત્યાર સુધી જે આ 25 વર્ષથી ભાજપ સરકાર કરી રહી છે, કેટલું સારું લાગે છે તમને? શું ખરાબ છે, શું સારું છે? ખરાબ તો એમાં ખાલી મોંઘવારી વધે એ જ છે, બાકી બધું સારું જ કામ કરે છે ને અત્યાર સુધી. મોંઘવારી ચાલે? મોંઘવારી તો હવે વસ્તુના હિસાબે વધતી જ જાય ને. જેમ મોંઘવારી વધે એમ રોજગાર હોય નહીં વધતું. તો તમારી મોંઘવારીનું તમે કહો છો, તો તમારી આવકમાં કેટલો ફરક પડ્યો? આવકમાં પહેલાં અમે 200માં કામ કરતા હતા, હવે 400નું કામ કરીએ. એટલે આવકમાં પણ ફરક પડ્યો છે? ફરક પડે ને, એનું એ જ રહેશે, બદલાવ તો નહીં આવે. કઈ પાર્ટી આવી?
એ આમ આદમીના જ આવ્યા હતા, બીજા તો કોઈ આવ્યા નહીં. બીજા કોઈ નહીં આવ્યા. મોંઘવારી તો ખરી જ ને. શું મોંઘું છે? બધું જ છે ને, તેલ, પેટ્રોલ, જે લાવીએ એ બધું મોંઘું જ છે. એવું છે. વોટ આપતી વખતે શું વિચારશો? ચલો એકો શું હવે તો શું શું વિચારવાનું? હે શું વિચારવાનું? શું વિચારવાનું? એવું કશું વિચારવાનું નહીં. પણ હવે આપણે એકલા શું કરવાના મેડમ? એક જણથી થોડું થાય. हर एक व्यक्ति यही सोचता है और यही बोलता है कि मेरे अकेले से क्या होगा. अब ये हर एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे अकेले से क्या होगा. वो सभी कुछ सोचना शुरू करें कि हमें क्या करना है तो कुछ हो सकता है. कुछ क्या हो सकता है वो मैं नहीं बताऊंगी, मगर हाँ, महंगाई से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना होगा और कुछ सरकार को कहना होगा. क्या सोच रहे हो इस बार जो विधानसभा इलेक्शन अभी है उसके बारे में क्या सोच रहे हो? क्या होगा? अच्छा करेगा, उसको वोट देने का. महंगाई ज़्यादा हो गई है, मोदी चाचा अच्छे करते हैं, अभी वही चलेगी सरकार. इस मरतबा अच्छा होगा कुछ. पब्लिक का ध्यान रखेंगे तब. बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई गांव ज़्यादा है, महंगाई की वजह से ग्राहकी कम चल रही है. सरकार कोई भी आवे उसका अच्छा निर्णय लेना चाहिए पब्लिक के हित में. बस वही कहना मांगते हैं हम. पूरे देश में अच्छा चलना चाहिए, सबके साथ भाईचारगी रहना चाहिए. महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है, बस दूसरा कुछ नहीं है. राजनीति के अभी जो मुद्दे हैं वो महंगाई हटाने के, विकास के मुद्दे नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना. सब तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, ये महंगाई डायन, और महंगाई से छुटकारा पाने की हर एक व्यक्ति गुजारिश कर रहा है कि सरकार चाहे जो भी आए, महंगाई कम होनी चाहिए, आम लोगों के ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा आसान होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए.